Good morning, students. Most welcome to everyone in today's chemistry class. Chapter is electrochemistry. Yesterday, I had discussed types of electrolysis, that is qualitative electrolysis and quantitative electrolysis. The today's topic is conductance of electrolytic solution. And in conductance of electrolytic solution, many important terms are used, and these important terms are very important for the numerical, so that I will explain these terms. But before explaining these terms, I would like to discuss conductors and types of conductors. Clear? So firstly, I would like to define conductors. Substances which allow electricity to pass through them are called conductors. These are of two types, means those substances which are able to conduct electricity through these substances are called conductors. Conductors are of two types, electronic conductors and electrolytic conductors. Electronic conductors are generally in solid state, that is metals, graphite and certain minerals, where the responsible for the conduction of electricity are free electrons. उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड नंबर बी है सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स और some solutions of electrolytes like solutions of acid, solutions of base, solution of salt in water, molten or fused salts, where the ions are responsible for the conduction of electricity. It means electronic conductors are those conductors in which free electrons are responsible for the conduction of electricity, and electrolytic conductors are those conductors of electrolytes in which free ions are responsible for the conduction of electricity. Free ions may be of cations, may be of anions. Clear? Now I would like to define some important terms, and number one is resistance of electrolytic solution. जैसा कि बच्चों सब लोगों ने रेजिस्टेंस वर्ड आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक वायर में, तो इलेक्ट्रिक वायर में रेजिस्टेंस जैसे होता है वैसे ही जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होते हैं उसमें भी रेजिस्टेंस होता है. उसमें भी करंट के फ्लो में रुकावट आती है, करंट के फ्लो में हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है. उसी रुकावट को, उसी हिंड्रेंस को हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं. द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय सॉल्यूशन ऑन द पासेज ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. मैथमेटिकली रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज in between electrodes to the current, that is R is equals to V upon I. V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर. I क्या है? करंट इन कंडक्टर, जो भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है. यूनिट ऑफ R, एक तो इसके फार्मूले से हम लोग बना सकते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर, और अनदर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, वेरी पॉपुलर यूनिट ओम, और द सिंबल ऑफ ओम इज दिस. क्लियर? Now next term is conductance of electrolytic solution, that is D. Conductance of electrolytic solution, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? G से डिनोट करते हैं. Conductance is reciprocal of resistance. Conductance क्या होता है? It is the reciprocal of resistance. ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है. And mathematically we can write G is equals to 1 upon R. Now unit of G. The unit of G is ohm inverse, और द सिंबल ऑफ ओम इज इनवर्स, और इसको स्पेलिंग हम उल्टी कर देते हैं MHO, दैट इज मोहो. और साइमन एक साइंटिस्ट थे, मिस्टर जॉर्ज साइमन. उन्होंने कंडक्टेंस के बारे में बताया था और उनके ऑनर में यूनिट बनाई गई साइमन. द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन. 1 साइमन इज इक्वल्स टू 1 ओम इनवर्स. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स. Now second term is next term is resistivity or specific resistance of electrolytic solution, and it is represented by a symbol rho. This symbol is known as rho, RHO, rho. Clear? तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो भी हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, where L is the separation between the electrodes in electrolytic cell, are also inversely proportional to area of cross sectional of the plate. After combining both relation, R directly proportional to L upon A, and after removing the proportional sign, R will be equal to rho into L upon A. Then rho will be R into A by L, and rho is known as specific resistance or resistivity. R, you know very well that it is resistance. A is the cross sectional area of the plates. L separation between plates
और सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। क्लियर। नाउ यूनिट ऑफ रो, रो की यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी तो ओम होती है, और इसकी अगर मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो उसकी मीटर लिखना पड़ेगा, दैट इज ओम मीटर हो जाएगा या ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर। SI यूनिट ऑफ रो ओम मीटर और सिंबल ऑफ ओम इंटू मीटर, दिस इज SI यूनिट, एंड CGS यूनिट इज ओम इंटू सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम ही होती है, CGS में भी लिखते हैं। 1 ओम मीटर इक्वल्स टू 100 ओम सेंटीमीटर, या 1 ओम सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.01 ओम मीटर और 10⁻² ओम मीटर। नाउ आई एम अगेन राइटिंग रो इक्वल्स टू R इंटू A by L, रो इक्वल्स टू R इंटू A by L। तो यहाँ से whenever A is equals to 1 centimeter square and L is equals to 1 centimeter, then rho will be equals to R. It means rho, it is a special resistance when area of cross section 1 centimeter square and the separation between electrode is 1 centimeter. ये एक टाइप का रेजिस्टेंस है जब A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और L क्या हो 1 सेंटीमीटर हो, इसीलिए इसका एक स्पेशल नाम दिया गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सिंस इट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस and what are the specific condition? The specific conditions are A is equals to 1 centimeter square and the L is equals to 1 centimeter. Specific resistance may be defined as resistance of electrolytic solution when area of cross section of plates 1 centimeter square and distance between plates is 1 centimeter. Okay students, now next term is conductivity or specific conductance. It is denoted by symbol kappa. Conductivity or specific conductance and it is denoted by a symbol kappa. Mathematically it is the reciprocal of specific resistance or resistivity. It kappa is equals to 1 upon rho. Now unit of kappa, SI unit is ohm inverse meter inverse, or the symbol of ohm inverse meter inverse, or moho meter inverse, or मोहो की प्लेस पे साइमन इंटू मीटर इनवर्स। CGS में हम क्या लिखेंगे, मीटर के प्लेस पे सेंटीमीटर रख देंगे। 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल्स टू 100 साइमन मीटर इनवर्स। 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल्स टू 100 इंटू साइमन मीटर इनवर्स। नेक्स्ट टर्म इज सेल कांस्टेंट. इट इज डिनोटेड बाय G स्टार. इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सेल. जैसा कि इसका नाम ही दिया गया सेल कांस्टेंट, सेल का कांस्टेंट. तो एक्चुअली जब सेल एक बार डिजाइन हो जाता है, एक बार प्रिपेयर हो जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रोड के बीच में सेपरेशन और इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कांस्टेंट होता है. तो जब वो कांस्टेंट होता है तो उसका रेशियो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो G स्टार इक्वल्स टू L अपान ए कहा गया है, ना कि A अपान एल. ये आपको याद रखना है. G स्टार इक्वल्स टू L अपान ए, और L अपान ए के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, R अपान रो, क्योंकि R इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू L अपान ए. तो L अपान ए इक्वल्स टू R अपान रो एंड 1 अपान रो इक्वल्स कप्पा. देयरफॉर वी कैन राइट R इंटू कप्पा एंड R इक्वल्स टू 1 अपान G, देन G इक्वल्स टू 1 अपान R. R के प्लेस पे 1 अपान G पुट कर सकते हैं, तो कप्पा अपान G हो जाएगा. कप्पा अपान G, kappa upon G is equals to G star, then kappa is equals to G into G star. Therefore kappa is equals to G into G star. This relation is very very important students. You should learn all the relations of cell constant. Clear? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एट गिवन कंसंट्रेशन एंड इट्स सिंबल इज दिस. इसको हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन. ये जो उल्टा V लिखा हुआ है ये कंडक्टिविटी का सिंबल है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन. क्लियर? सबसे पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन V is defined as the conductance of all the ions produced from 1 gram equivalent of an electrolyte dissolved in V cubic centimeter or V ml of solution when the distance between the electrodes is 1 centimeter and area of electrodes is so large that whole of the solution is contained between them. Equivalent conductivity at given concentration is equals to kappa into V. या मैथमेटिकली इसको कप्पा इंटू 1000 अपान नॉर्मलिटी. कप्पा यहाँ पे आपको लेना है ओम इनवर्स, कप्पा आपको लेना है यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में. नॉर्मलिटी आपको लेना है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में. उस केस में जो
ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, ये जो वैल्यू आएगी इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या ओम इनवर्स के प्लेस पे साइमन आप लिख सकते हो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इसकी जो यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स कब आएगी, जब कप्पा आप साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में लोगे और नॉर्मलिटी क्या लोगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में लोगे। क्लियर। और भी इसकी यूनिट होती हैं, इसकी एसआई यूनिट हो गई साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और सीजीएस यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। दोनों में रिलेशन क्या होता है, 1 साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स इज इक्वल्स टू 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब हमें अगर मान लो साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो भी बच्चों हम लोग देख लेते हैं। तो in terms of SI unit, the equivalent conductivity at given concentration is kappa should be in Simon meter inverse upon normality and normality should be in gram equivalent per meter cube। अगर कप्पा साइमन मीटर इनवर्स में और नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब में लेते हैं तो इसका फार्मूला सिर्फ कप्पा अपान एन होता है, यहाँ पे 1000 हमें यूज नहीं करना है, और हमारा आंसर आ जाता है साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स में, साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स में। नोट देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन विथ 1000, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। अब इसके बाद अभी तक हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एट गिवन कंसंट्रेशन, और उसका सिंबल हम लोग क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड V, और यहाँ पे M लिखेंगे। M मीन्स मोलर कंडक्टिविटी, C मीन्स एट गिवन कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन एट ए डाइल्यूशन V इज द conductance of all the ions produced from 1 mole of electrolyte dissolved in V cubic centimeter or V ml of the solution when the electrodes are 1 centimeter apart and the area of electrodes is so large that the whole of solution is contained between them। पूरा का पूरा solution उसमें contained हो जाए। कहने का मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन एट ए डाइल्यूशन V डाइल्यूशन पर या V वॉल्यूम पर क्या है, इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, जिसमें जितने भी आयंस हैं उनकी कंडक्टेंस है, प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी आयंस प्रोड्यूस हैं उनकी कंडक्टेंस है, जो कि VmL सोल्यूशन में डिजॉल्व किए गए हैं। और कब, जब व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है कि पूरा का पूरा जो VmL है उसमें कंटेन्ड हो जाए, उसमें समाहित हो जाए। ठीक है। इसका बाद इसका फार्मूला मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन कप्पा इंटू 1000 अपान मोलर टी, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन गिवन है, ये मोलर टी। कहने का मतलब मोलर कंडक्टिविटी इस कंसंट्रेशन पे, इस मोलर टी पे हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो कप्पा इंटू 1000 बाई मोलर टी, कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में लिखोगे, मोलर टी मोल पर लीटर में लिखोगे, उस केस में इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी जो यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या साइमन के प्लेस पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये CGS यूनिट है। और SI यूनिट क्या है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन SI यूनिट में जब आप इस फार्मूले को पुट करोगे तो आंसर फिर हमें 1000 यूज करना है। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन कप्पा अपान मोलर टी, कप्पा साइमन मीटर इनवर्स, और ये मोल पर मीटर क्यूब में आपको लेना, मोलर टी मोल पर मीटर क्यूब में। इससे जो वैल्यू आएगी उसकी यूनिट क्या होगी, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो कभी अगर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में पूछा जाए तो कप्पा और M आपको इस यूनिट में लेना है, और कप्पा और M उस यूनिट में गिवन है तो कप्पा इंटू 1000 बाई मोलर टी होगी, और यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगी। तो इस तरह दो कंडक्टिविटी हो गई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन विथ 1000, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। आगे रिलेशनशिप बताने जा रहे हैं हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसकी अपनी मोलर कंडक्टिविटी भी होती है उस कंसंट्रेशन पर, और उसी कंसंट्रेशन पर उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होती है। तो दोनों में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं। तो फिर एक वैल्यू आप फाइंड करोगे बाई कैलकुलेशन और दूसरी आप शॉर्टकट मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। तो आई रिपीट,
molar conductivity at given concentration kappa into 1000 by molar T, बट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मल टी होता है। क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मल टी। अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन से, तो मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलर टी, कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मल टी ऊपर हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, कप्पा से कप्पा कैंसिल हो गया, दैट इज नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी, एंड नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू होता है बच्चों मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी से मोलरिटी कट हो गया, कुल मिला के रेशियो आ गया एन फैक्टर का, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू एन फैक्टर, देन मोलर कंडक्टिविटी विल बी एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी मोलर कंडक्टिविटी at given concentration will be n factor into equivalent conductivity at given concentration. And what is the n factor of any electrolyte? The n factor of any electrolyte is total positive or total negative charge present in one formula unit of salt या electrolyte. अगर वो salt है या कोई electrolyte का मतलब एसिड बेस है, तो उसके वन फार्मूला यूनिट पर जितना पॉजिटिव या जितना निगेटिव चार्ज है दैट इज नोन एज एन फैक्टर। वहाँ एन फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी में एट गिवन कंसंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे मूव कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशंस दैट इज कप्पा। मान लो हमारे पास कोई आयनिक सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन है जिसमें कोई भी हमने इलेक्ट्रोलाइट हमने वाटर में डिजॉल्व किया और वो सोल्यूशन बन गया है, और उसका मैंने एक शेल बना दिया है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि भैया उस सेल की जो है ना कंडक्टिविटी कप्पा क्या होगा, तो कप्पा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक से हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे ट्रिक से फाइंड करते हैं ये आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग नोट कर लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस दैट इज कप्पा। तो कप्पा फाइंड करने के लिए उससे पहले हमें रो फाइंड करना होता है, और रो फाइंड करने से पहले हमें कैपिटल आर दैट इज रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ कप्पा, फॉर मेजरमेंट ऑफ कप्पा ऑफ एनी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, फर्स्टली वी शुड मेजर रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर ऑफ आयनिक सोल्यूशन, या उस आयनिक सोल्यूशन को जिस सेल में भरा होता है उस सेल को हम लोग कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। बाई व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज एक कॉन्सेप्ट है, एक मेथड है, उसकी हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं। चलो अब हम लोग एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। मान लो हमारे पास ये कंडक्टिविटी सेल बना हुआ है, एक कंडक्टिविटी सेल है, और कंडक्टिविटी सेल होता क्या है भाई, कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन उसमें हम भर लेते हैं, कोई सोल्यूशन बना लेते हैं, उसमें 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक हमारा कैथोड एक एनोड हो जाता है, क्लियर, और उसको प्लेटिनम वायर से उस प्लेट को कनेक्ट कर देते हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करती हैं। तो 2 ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों को प्लेटिनम वायर से हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये जो कंटेनर है, कंटेनर किसका बना हुआ है? पायरेक्स ग्लास वेसल, पायरेक्स ग्लास वेसल है। इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड हैं दोनों के बीच के जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो L सेंटीमीटर है, और प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फिल कर लिया है जिसका हमें कप्पा फाइंड करना है। लेकिन हमने आपको बताया था पहले कप्पा से पहले रो फाइंड करेंगे, और रो पहले से पहले क्या फाइंड करेंगे? आर दैट इज रेजिस्टेंस। तो ये कोई एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन है जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और ये कनेक्टिंग वायर 2 लगे हुए हैं। आई मीन दोनों वायर के जो दोनों पॉइंट हैं उनको बच्चों अभी हम आपको बताएंगे कि इन दोनों पॉइंटों को आपको कहाँ पे इनको ऐड करना है, मैं आपको ये बताऊँगा। तो इसके बारे में जरा हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स L सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट्स A सेंटीमीटर स्क्वायर, लेट रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सोल्यूशन इन सेल B R2। और हमने मान लिया कि सेल का रेजिस्टेंस कैपिटल R2 है, तो अब हमें R2 की वैल्यू पता लग जाए, बस हम समझ जाएंगे कि इसका रेजिस्टेंस फाइंड हो गया। फिर L और A हमें पता है, रो फाइंड हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू R इंटू A बाई L हो गया। फिर कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपान रो हो गया। तो इस तरह हम लोग पहले R फिर रो फिर कप्पा हम लोग फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए ट्रिक देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से फाइंड करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होती है? R2 कैन बी कैलकुलेटेड बाई फॉलोइंग व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। ठीक, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R2 है, R2 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? उसको व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से फाइंड करेंगे, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है बच्चों, 4 रेजिस्टेंस लिए जाते हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 रेजिस्टेंस लिए गए। यहाँ पे हमने पॉइंट दे दिए A, B, C और D। तो एक रेजिस्टेंस A और B के बीच में होगा, दूसरा B और C के बीच में होगा, तीसरा C और D के बीच में होगा, और एक A और D के बीच में होगा, ठीक। और उसको फिर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और बैटरी का जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, और छोटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होती है और नेगेटिव टर्मिनल पे आती है।
ये करंट ए पे पहुंचेगी, ए से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, दो पार्ट में पहुंचने के बाद एक करंट बी पे पहुंचेगी, एक डी पे पहुंचेगी। अब सिचुएशन ये होती है कि कभी करंट बी से डी में जा सकती है या डी से बी में जा सकती है, और प्लस आगे भी करंट जाएगी, आगे भी जाएगी, और सी के बाद जो उतनी करंट आएगी जितनी इधर से एंट्री हुई थी। तो ये जो आर्म यहाँ पे बी डी आर्म है, यहाँ पे एक जी नाम का गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है कि जब भी करंट बी डी ब्रांच में फ्लो होती है, चाहे वो बी से डी में आए चाहे डी से बी में जाए, अगर बी डी ब्रांच में करंट फ्लो होती है तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। क्लियर? इसकी नीडल डिफ्लेक्ट कर जाती है, नीडल लगा होता है और डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो करंट अगर फ्लो होती है, तो अगर करंट फ्लो नहीं होती तो उसकी नीडल बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। R3 और R4 ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं, इनको हम रेजिस्टेंस बॉक्स से लगा के यूज कर लेते हैं। R3 के प्लेस पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और एक R4 के प्लेस पे लगा देते हैं। मान लिया R3 इक्वल्स टू 2 ओम हो गया और R4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 ओम हो गया। ये 2 ओम हो गया, 3 ओम हो गया। ठीक, R2, अब R2 बच्चों हमें फाइंड करना है। तो ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये दो जो पॉइंट यहाँ पे मैंने बना दिए हैं, इन दोनों पॉइंटों को हम लोग, ये जो कंडक्टिविटी सेल है, एक पॉइंट इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसका जो एक जो ये पॉइंट है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो R2 है, R2 किसका रेजिस्टेंस है, इस कंप्लीट सेल का रेजिस्टेंस हो जाता है। ये जो सेल है, तो इस सेल को हम यहाँ पे दो पॉइंटों से कनेक्ट कर देते हैं। एक वायर, ये जो है ना, ये वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और वायर का ये जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका जो भी रेजिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे R2 मान लिया। ठीक, जो कि अननोन है, हमें फाइंड करना है। R3 और R4 नोन हमारे पास है। ठीक, अब ये जो R1 है, R1 एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है R2 रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल अननोन है, जो कि फाइंड करना है। R3 R4 नोन रेजिस्टेंस है। R1 वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है क्या है बच्चों, कि R1 की प्लेस पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस बार बार यहाँ पे हम सेट करते रहते हैं। रेजिस्टेंस बार बार रेजिस्टेंस बॉक्स से यहाँ पे यूज करते रहते हैं, लगाते रहते हैं, और साथ में डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखते रहते हैं। जैसे ही डिफ्लेक्शन नल हो जाए, डिफ्लेक्शन ना हो, बस यहाँ पे जो लगाया गया रेजिस्टेंस उसको हम फिक्स मान लेते हैं। यहाँ पे लगाया गया रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं? फिक्स। और जो रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है उस रेजिस्टेंस के ऊपर एक छोटी सी एरो बना देते हैं। तो एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे वेरिएबल है। तो R3 और R4 पहले हमने बॉक्स से यूज कर लिया। मान लो ये 2 ओम या 3 ओम है। R2 हमें फाइंड करना है। R1 वेरिएबल रेजिस्टेंस है, फिर हम रेजिस्टेंस बॉक्स से यहाँ पे रेजिस्टेंस बार बार लगा के चेक करते रहते हैं इस गैल्वेनोमीटर को। जैसे डिफ्लेक्शन जिस रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू पर, जिस R1 की वैल्यू पे यहाँ पे डिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाता है, डिफ्लेक्शन नहीं होता है, बस वहीं पे R1 की वैल्यू को नोट कर लेते हैं कि R1 की कौन सी वैल्यू है। ठीक, और यहाँ पे जैसे डिफ्लेक्शन नल हो जाता है तो हम मान लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है। और व्हीटस्टोन ब्रिज का काम का स्टेटमेंट क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का स्टेटमेंट ये होता है कि अगर आमने सामने के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल है तो यहाँ पे नल पॉइंट होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब R1 और R4 का प्रोडक्ट, R2 और R3 का प्रोडक्ट दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। मान लो ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। ठीक, ये 2 ओम है और ये क्या है? 3 ओम है। और R1 2 ओम आ गया तो R2 भी क्या होगा? 3 ओम होगा, क्योंकि 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इधर इधर का प्रोडक्ट और इधर इधर का प्रोडक्ट क्या होता है? बराबर होता है। या R1 अपान R2 इज इक्वल टू होता है R3 अपान R4। तो R3 और R4 हमें पहले से पता थे। R1 जब यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ये गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे करंट नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आ गई, उस सिचुएशन में R1 जो रेजिस्टेंस लगाया है हमने, वो R1 भी हमने नोट कर लिया। तो अब हमारे पास 3 नोट हो गए, R1 भी नोट हो गया, R3 भी नोट हो गया, R4 भी नोट हो गया। R2 हमें फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर व्हीटस्टोन की कंडीशन लगा दो। व्हीटस्टोन की कंडीशन क्या होती है? जब यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो R1 इंटू R4, R2 इंटू R3 क्या होता है? इक्वल होते हैं। ठीक, और वो डिफ्लेक्शन का उसका नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? नल पॉइंट का मतलब ये होता है डिफ्लेक्शन नहीं आता है, इसका मतलब BD ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, ना B से D ना D से B, मतलब BD ब्रांच में करंट नहीं फ्लो हो रही। और जब BD ब्रांच में करंट ना फ्लो हो, दैट सिचुएशन इज नोन एज व्हीटस्टोन सिचुएशन। क्लियर? तो व्हेन नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, दैट इज नो करंट इन BD ब्रांच, मीन्स नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, उसका मतलब वहाँ पे R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 होता है, या
R1 इंटू R4 इक्वल्स टू R2 इंटू R3। अब हमें R3 भी पता था, R4 भी पता था, R1 भी हमें पता है, R2 नहीं पता है, तो यहाँ पे R2 अननोन है, बाकी सब पता है। तो हेंस अननोन रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू R4 अपॉन R3। यहाँ से हम R2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और R2 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ इस कंडक्टिविटी सेल है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल है। लेकिन हमें इस सेल का क्या फाइंड करना है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड करना है, कंडक्टिविटी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो R2 के बाद सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? रो ऑफ कंडक्टिविटी सेल और आयनिक सेल। रो इक्वल्स टू क्या होता है? R इंटू ए अपॉन एल, और R के प्लेस पे क्या लिखोगे? R2 इंटू ए अपॉन एल। यहाँ से रो आ गया। अब इसके बाद हमें कप्पा फाइंड करना है। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ रो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ आयनिक सोल्यूशन विल बी कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/रो हो जाएगा। तो इस तरह हमने रो कप्पा फाइंड कर लिया। तो कप्पा फाइंड करने के लिए रो फाइंड किया, रो फाइंड करने के लिए आर फाइंड किया, और आर किस मेथड से हमने फाइंड किया? व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन से। व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या होती है? अगर यहाँ पे R1 और R4 का प्रोडक्ट R2 और R3 के प्रोडक्ट के बराबर आता है, या R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 का रेशियो बराबर होता है, उस केस में BT ब्रांच में कोई करंट नहीं होती, ना B2D ना D2B, और वो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं कि इस तरह के जो डायग्राम हो सभी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसे डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन तभी होते हैं जब R1 और R4, R2 और R3 का प्रोडक्ट बराबर होता है। अगर प्रोडक्ट बराबर नहीं है तो व्हीटस्टोन की कंडीशन नहीं है। उस केस में BD ब्रांच में जरूर करंट फ्लो होगी, वो B से D हो सकती है या D से B हो सकती है, वो आगे फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे BD ब्रांच में करंट जीरो नहीं होगी, कुछ वैल्यू होगी, और वो या तो B से D आएगी या तो D से B जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो व्हीटस्टोन कंडीशन क्या है? BD ब्रांच में कोई करंट फ्लो ना हो। इसके बाद बच्चों अगला अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है, कुछ इनके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक हमने जो फार्मूले पढ़े जिनसे इन फार्मूलों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड with 0.1 m KCl solution is 100 ohm. If R of the same cell when filled with 0.02 m KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 m KCl solution. The conductivity of 0.1 m KCl solution is 1.29 Simon meter inverse दी गई है बच्चों। तो सबसे पहले हम सेल, हम सबको पता है सेल एक बार बन जाता है तो उसमें सोल्यूशन कोई भी चेंज करें, सोल्यूशन कोई भी रखें, किसी भी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन रखें, लेकिन सेल का जो कांस्टेंट है वो हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। तो सेल कांस्टेंट कप्पा इंटू आर होता है। कप्पा की वैल्यू, आर की वैल्यू, ये सेल कांस्टेंट 129 मीटर इनवर्स या 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। अब कंडक्टिविटी कप्पा ऑफ 0.2 m KCl सोल्यूशन, तो 0.2 m KCl सोल्यूशन के लिए कप्पा क्या होता है? G स्टार अपान आर होता है। G स्टार आपने फाइंड कर लिया, 129 मीटर इनवर्स अपान 520 आ गया, यहाँ से कप्पा आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ 0.02 m, जो 0.02 m की कंसंट्रेशन जो है मोल पर मीटर क्यूब में कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? 0.02 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा मोल पर मीटर क्यूब में। ये मोल पर लीटर है, और इस मोल पर लीटर को मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 मोल पर मीटर क्यूब, 20 मोल पर मीटर क्यूब। और ये G स्टार अपान आर, इसकी वैल्यू आ गई 0.248 साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। अब आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है गिवन कंसंट्रेशन पे, वो भी किस में फाइंड करना है? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में कप्पा किस में रखते हैं? साइमन मीटर इनवर्स, और मोलरिटी मोल पर मीटर क्यूब। तो ये मोलरिटी 20 मोल पर मीटर क्यूब में आ गई है, और ये जो है 129 ये साइमन मीटर इनवर्स में कप्पा आ गया है। ठीक है, तो 0.248 साइमन मीटर इनवर्स सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह हम लोग बच्चों SI सिस्टम में भी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 m NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ohm. Calculate its resistivity, that is rho, conductivity, that is kappa, and molar conductivity at given concentration. तो बच्चों इसका जो इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड एक वायर जैसा होता है। वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सर्कुलर होता है, इसलिए एरिया का फार्मूला क्या लगेगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14,
डायमीटर 1 है तो रेडियस 1/2 हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आंसर आ गया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, एरिया आ गया। एल सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है, आर 5.55 10³ ओम इनवर्स है। सबसे पहले रेजिस्टिविटी फाइंड कर लेंगे। रेजिस्टिविटी पूछा गया, रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल है। आर की वैल्यू पुट कर दिया, ए बाई एल की वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया ओम सेंटीमीटर। रो की यूनिट होती है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, तो इसमें हमने सेंटीमीटर में यूज किया है तो इसलिए इसकी यूनिट क्या आ गई, ओम इंटू सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा गया, कंडक्टिविटी कप्पा पूछा गया। कप्पा क्या होता है, 1/रो होता है। 1/रो आपने यहाँ पे फाइंड किया है। अब अगर आपका आर सही है तो रो भी सही आएगा, और अगर रो सही आएगा तो कप्पा भी सही आएगा, और कहीं पे मिस्टेक हो गई तो सारी प्रॉब्लम आगे आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग बहुत ही बच्चों ध्यानपूर्वक और बिल्कुल एररलेस सॉल्व करेंगे। 1/रो की वैल्यू पुट कर दोगे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओम सेंटीमीटर में था तो ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी होती है। मोलरिटी एक्चुअली मोल पर लीटर में दी है, कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में लिखा हुआ है, इसलिए हमें 1000 लगाना पड़ेगा और आंसर आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह हम लोग बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला एक क्वेश्चन और है, प्रॉब्लम द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is 210 ohm at 298 Kelvin with a cell constant of 0.88 centimeter inverse. Calculate the conductivity and equivalent conductivity of solution. कंडक्टिविटी फाइंड करना है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी कप्पा का फार्मूला क्या होता है, कप्पा इक्वल्स टू 1/r इंटू L/A। 1/r, आर दिया है 210, अच्छा ना एल दिया है ना ए दिया है, लेकिन L/A का जो रेशियो है इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं, और क्वेश्चन में सेल कांस्टेंट दिया है 0.88, तो L/A के प्लेस पे आप 0.88 पुट कर सकते हो और ये आंसर आ जाएगा 4.19 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी। कप्पा दिया 1000, नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 419.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। बात नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अपने आप सॉल्व कर लेना, और जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछ लेना। इस हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लोगों को शेयर भी कर देना। थैंक यू, वेरी गुड।